So guys, today is the last date of MCQ class, which is one class left. So I thought which is the most important section. Everybody can hear me now? Can everybody hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine, it's fine. Okay. So every year, if you look into the pattern, there's always a certain kind of pattern regarding the 70% of the question which comes in the MCQ section that they concentrate on those sections. So one of them is a dance and music sometime, but dance is always there. So whether it could be a folk dance or whether it could be a classical dance, it depends upon the mindset of the person. Now, since MCQ has been reduced to 20 questions, which is 1 marks each, and particularly when they have made this rule that if you do not secure the highest marks in the section 1, paper 1, which is MCQ and MSQ, your paper B will not be checked. That is for sure. And there's a certain ratio which everybody knows about it. So you have to pay attention now in MCQ and MSQ. MSQ is relatively simpler, relatively I would say, because it is a domain, but MCQ is endless. But still, there is a limit from beginning to end. So these are the certain questions, roughly around 107 questions I have included in this one. They all are important in their own way. Some of them are very, very important, which I'll mark while talking, and the rest are important in their own way. They all are Sangeet Natak Academy SNA awardees. That's the one thing you need to remember. They are not have heard about them, but they all are important people in their own sense of the term. So starting from this, I have formulated these in such a manner. So I have included a word not. Pay attention to the question, what is being asked. Sometimes they ask not is very important. For example, Bharatanatyam exponent, and one of them is not. So Raja Radha Reddy, everybody knows, is one of the exponent which is well known for the Kuchipudi dance form. So the correct answer would be the Raja Radha Reddy. Everybody knows this couple is one of the oldest dancers who are working in the dance form. These numbers are by some 25 or 24. This is by virus. I don't know how this number has appeared, but ignore them, please. So again, who among the following is not a Bharatanatyam dancer? So except Suma, Sudhindra, this is the again. Sorry, just give me a moment. Just give me a moment. There is a little problem in this. Just give me a moment. Okay. So here the Kusum Heather is the one who is not a Bharatanatyam. Everybody else is. Rukmini Devi Arundale is one of the most famous, including T. Bala Saraswati. These are the two most popular dancers in Bharatanatyam dance, and quite an old, more than I suppose 70 years old. So correct is Kusum. Kusum is not the one. So as I said that they all are. I have also mentioned the year just for, you don't need to remember the years. It is just for the correctness of who was awarded in which particular year. That's it. So again, who among the following is not a Bharatanatyam dancer? So all these people, including just one person, Veena, is not the Bharatanatyam dancer, and rest of these people are again. The year is also being mentioned, 65, 64, 62. So these are the very old people. May not be very popular. Some people you keep hearing very often here and there in the newspaper, but not everybody you keep hearing. It does not mean that these people are not important. So you have to be a little careful. But people like who are very, very important, I will keep marking them again and again so that you remember. And some name will appear twice or thrice just to give a little emphasis. So in this one, Aruna Sairam is not the Bharatanatyam dancer. Rukmini is the most popular one. Same is rest of these people. So again, just a moment. Hello. Hello. Yes. आपको इसी नंबर पे ना कल बात करते हैं, अभी इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है. Okay. So it's just a call transfer. So question number 4.
Aruna Sairam is not the one. Rest of these people are again Bharatanatyam dancers. So let me just show you if quickly some of the images are also there so that you can remember better. This one, these are not the high resolution images, so no purpose is being served. Again, the question number 5, who among the following is not a Bharatanatyam dancer? Shanta Rao, Kamla, Leela Prakashan is not one. Rest of these people are Bharatanatyam. Again, not a very popular one, but Shanta Rao is, you can call it as a popular dancer. So you need to remember that name. Again, all these names except Trichy Sankaran is not the rest of these are all Bharatanatyam dancer. Again, the years are 71, 72. So you can imagine that before that, they must have been practicing for many, many years. And normally, there are two kind of SNA award. One is the main award. And before that, there is another award called Yuva Puruskar. They call it as a Yuva Puruskar, which is being given to people who are less than 40 years. So they must be those particular year. So one can figure it out. So T. Balsaravati is the most popular one among these 5 people. But again, you have to figure it out who is not. So Dhrubai is not the Bharatanatyam dancer. Again, question number 8. If you go again, the same, it is about the who is not a Bharatanatyam dancer. So Yamini Krishnamurthy is the most popular one among these people, but Veena Sahasrabuddhe is not the Bharatanatyam dancer. Yamini Krishnamurthy can be asked if I have to, she is one of the 3 topmost Bharatanatyam dancer in terms of the seniority as well as the popularity. So Yamini Krishnamurthy also has a foundation in Delhi. Those people who are aware of the Delhi area, in Hoj Khas, she has a center where she runs her school. Question number 9. So again, who among the following is not a Bharatanatyam dancer? Indrani Rahman is, if you remember, her husband was an architect, and Indrani Rahman is also a popular dancer. Vijayantimala Bali, everybody knows because she was a star. So these 2 people are well known among these 4 people. Uma Dogra is not the Bharatanatyam dancer. So correct answer is Uma Dogra. Because I was checking today in the MSQ also section, particularly for acting, there were 4 statements. Among that, 3 were not correct and 1 was correct. So that could be one of the way to figure it out. They will give the 3 statement which is not correct and 1 is correct. I have given many questions like that in over here. Those who have gone through this MCQ things by themselves, they must be knowing about it. So question number 10. Again, all these people are Bharatanatyam dancer except SR Janki Raman. Rest are all not very popular, but still they are considered as the important dancers because they all are SNA awardees. Again, Chitra Vaishwaran is the popular one. Mark this name very carefully, and it could be asked during the time of 90s when I used to work as a still photographer. I have shot many dancers in the Kamani Auditorium, so she has performed many a times over there. So again, a well-known dancer. So Sukanya Ram Gopal is the one who is not the Bharatanatyam dancer, but Chitra is most popular one. Again, this list of all these people are not so non-name except in terms of the popularity. But as I said, most of them have their own respect in their own way. So Navyali Santa Gopalan is not the one who is a Bharatanatyam dancer. Rest are all. Among this list, again, the similar goes, not very popular one, these people are, but again, Suguna is not the Bharatanatyam dancer in this list. Again, this list, Mrinalini Vikram Sarabhai is the most popular one. Mark it carefully. And she was married to Vikram Sarabhai, everybody knows. So she's the popular one, but rest of the people are also in the field known. So Lalgudi, GRK Krishnan is not the Bharatanatyam dancer. Rest I've already told you. So Mrinalini's name could be asked if some well-known names would be chosen. But you never know how the mind of a person works, so they can pick up anyone. Again, question number 15th.
Suguna is not the Bharatanatyam dancer. Rest all are Bharatanatyam, but they're not popular. If the popular name would come, I will pick it up. Again, question number 16th. Padma Talwakar is not the Bharatanatyam dancer. Rest of them are all Bharatanatyam. Pratibha Prahlad is popular dancer, and लीला सैमसन इज इक्वली पॉपुलर डांसर. लीला सैमसन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना है जो मैंने पहले बताया हुआ है आपको, एमसीक्यू में आपने कभी सुना होगा. संचारी के नाम से डॉक्यूमेंट्री है जो अरुण खोपकर ने बनाया है. दिस कैन बी आस्क्ड बिकॉज़ अरुण खोपकर इज alumni of FTI Pune and he has done 3 films for Ministry of External Affairs. It was funded by Ministry of External Affairs. So Leela Sampson, Sanchari is the name of the film. It can be asked, remember it. Pratibha Prahlad is equally known. So who is not a Bharatanatyam dancer is Neela Ramgopal. Okay, who among the following is not a Bharatanatyam? Okay, Malvika Sarukai is also a well-known name. Please mark it carefully. And Alamar Valli is also a popular name. So these 2 women dancers are very popular in terms of Bharatanatyam. But the question is, who among the following is not? So Neela Ramgopal, as I've already mentioned over there, question is being repeated from not point of view, but the point is mentioning these 2 names, Malvika Sarukai and Alamar Valli. So these are popular names among the Bharatanatyam dancers. If I would have said 7, 8 names so far, so they are the one who can be asked. They may just say Alamar Valli belongs to which exponent of dance form, Bharatanatyam, Kathak, etc., etc. So you can mark it Bharatanatyam. Sometime you have to be a bit careful. There are 1 or 2 dancers which are very popular and they perform 2 dance forms. So you have to be a little careful about those people, but not so many are like that. Only 1 or 2 people are like that. So among these people, not anyone is a popular one, but Rajendra Prasanna is, wait. This is Rajendra Prasanna is the one who is not a Bharatanatyam dancer. Rest of these people are the one. Malvika Sarukai is most popular. Alamar Valli is another popular dancers. But if question would be asked, it would be about the Leela Sampson, because the film is being also made by someone, and that too AFTI alumni. And those people who knows a little bit more about the Congress, she also taught Priyanka Vadera the Bharatanatyam a little bit. So she has that kind of government connections also. Okay, question number 19th. Among these 4 names, the Lalita J. Rao is not the Bharatanatyam dancer. Rest of them are equally one. Again, I'm just running through these names. Question number 20. Saroj Vaidyanathan is a popular name. Please mark it carefully. Could be asked. And the rest of these people, Tiruvar Vaidyanathan is not the one. Rest of them are all Bharatanatyam dancers. Saroja Vaidyanathan is equally popular. She was married to some bureaucrat. I don't remember the name. Okay, question number 21. Again, who among the following is not? Suma is not the Bharatanatyam dancer. Rest of all are important dancers, but not popular. Who among the following is not a Bharatanatyam dancer? So question number 22. MS Sheila is not the one. Rest of them are Vijayanti Balabali, we have already discussed. Who among the following is not a Bharatanatyam dancer? So question number 23. MS Sheila we already have discussed. So Hemanti Shukla is not the one. Anyone who is a popular one among them is not, but they are important. Question number 24. I'm just marked whosoever name I am separately mentioning, mention on a piece of paper if you are sitting with a paper and pen, so that you will have a 7, 8 names to recollect later on. Again, question number 24. Suma is not the one. Rest of them are all Bharatanatyam dancer. Question number 25. Again, Gurnam Singh is not the Bharatanatyam dancer. Rest of them are all popular name. I'm not able to figure it out. Again, question number 26. Except Lalita J. Rao, rest are Bharatanatyam dancers. So these constitute the list of 26 people, roughly around 7, 8 names, which I have marked very, very carefully. They are popular. 7, 8 names are there, which you need to remember. Rest, I have just put it because there are always some mad people. They can pick up any person and you never know. So we are going to the Chhau. Chhau is basically a semi-classical dance form. We don't consider Chhau as a proper classical dance form. There was a long debate on this. So they found a new term called semi-classical.
सो छाऊ डांस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उसको मैंने वही फॉर्मेट पकड़ा है, हु इज नॉट, who among the following is not a Chau dancer? So all these people, Kedarnath Sahu is the very popular Chau dance dancer. So except Mysore M. Nagaraja, rest of them are all Chau dancers. Who among the following is not a Chau dancers? So except the Meenakshi K, rest of them are all Chau dancers. Popular one I have already told once. Any name, Gopal Prasad Dubey is also very popular. Please mark it carefully, Gopal Prasad Dubey. So question number 3, who among the following, so Raj Begum is not a Chau dancer, rest of them are all Chau dancers. Gopal Prasad Dubey is very popular. Very often you will hear this name. Many a times in other performing art question paper, his name is being asked. So again, question number 4, who among the following is not a Chau dancer except Lilavati M. Kavi? Rest of them are all Chau dancers. Who among the following is not a Chau dancer? Again, question number 5, except Krishna Borkar, rest of them are all Chau dancers. So not so many names I have included. There are 3 forms of the Chau dance, as all of you would be knowing so far: Mayurbhanj, Saraikela, and Purulia. So these are 3 dance forms. There could be other question can be formed. So if you look into it, maybe a particular the dance form in which the costume is being used. Some there are little more tricky questions can be formulated, but I have just included 3-4 names. So Chau cannot be ignored. Kathak is a popular dance form. Many names you will see here. You must have heard of it in the past, but again, we will quickly go through it. Who among the following ruling patterns is responsible for the popular establishment of Kathak Gharana or School of Kathak Dance? As everybody knows, there are 2 main Gharanas of the Kathak. One is a Lucknow, another Jaipur Gharana. So Wajid Ali Shah, if you have seen the Shatranj Ki Khiladi, Wajid Ali Shah period was used in that particular film and is based on a Premchand story, which is directed by Satyajit Ray. So that's Wajid Ali Shah is the person who is connected with that. Don't get confused with these other names. Wajid Ali Shah is the main guy who is known for that. Question number 2, all popular names. Sitara Devi is one of the most popular name. Her son is a music composer based in Bombay. Rest of them, Madhvi Mudgal is also popular, but Madhvi Mudgal also perform. So this is the correct answer because Madhvi Mudgal do not belongs to Kathak dance form. So Sitara Devi, Pandit Gopi Krishna, and Pandit Shambhu Maharaj, these are the well-known name in Kathak dance form. So who among the following is not a Kathak dancer? Himani Shivpuri. We'll go quickly. Himani Shivpuri is not the Kathak dancer. The rest of Lachu Maharaj, Sundar Prasad, Shambhu Maharaj, they are all big name in Kathak. Everybody is familiar with them. So Himani Shivpuri is not the one who is a Kathak dancer. Question number 4. Who among the following is not a Kathak dancer? Brij Kishore Dubey is not Kathak dancer. Briju Maharaj is star. Everybody knows. He belongs to Lucknow Gharana. Mohan Rao is well known. Sundar Prasad is also very well known dancer. So all these people are well known except the Brij Kishore, which I have already told you. Quickly, we'll go to next one. Question number 5. Who among the following is not Kathak dancer? Praful Kar is not Kathak dancer. Damayanti Joshi is a well-known dancer. Shambhu Maharaj we already have told. Sitara Devi I have already told. Damayanti Joshi is as big as Sitara Devi. And the rest of people I have already told. They are the founders of the Gharana. Question number 6. Who among the following is not a Kathak dancer? So Suguna is not the Kathak dancer. Roshan Kumari is also popular. Rohini Bhate is not that popular, but people knows. Gauri Shankar is also not very popular, but yes, Roshan Kumari among these 4 names is the most popular one. Of course, Suguna is not a Kathak dancer. So if anyone who will be asking these names, Roshan Kumari will be one of the names which can be asked in the examination. Mark it carefully. Okay. Who among the following is not a Kathak dancer? So Pratigyanshu Das is not. Kumudni Lekhia is also popular. As popular as Durga Lal. Durga Lal के नाम पर एक festival भी होता है कथक डांस का दिल्ली के अंदर. So Durga Lal is also a popular name. Kartik Ram is not that popular, but Durga Lal is popular. As I said, that there is a theatre, there is a Kathak dance festival at the name of Durga Lal.
So question number 8. Chiranjeev Lal is not a Kathak dancer among these rest. Uma Sharma is also very popular. Please mark it carefully. Uma Sharma is also a popular Kathak dancer based in Delhi. And Film Division has done a documentary on Uma Sharma. If I'm not mistaken, it was Prakash Jha probably who did a film, but I'm not sure. But film is being done on Uma Sharma for sure. Okay. Biscuit is live, yeah? Okay. Fine. So who among the following is question number 9? Mansoor Ali Khan is not a Kathak dancer. Birju Maharaj, obviously. Sundar Lal is Kathak dancer. Rani Karna is also Kathak dancer based in Delhi, but not that a star that it can be asked in a question of examination, because there are biggies over there. But people who very often keep shooting the photograph, they must have heard about Rani Karna also. Who among the following is not a Kathak dancer? So question number 10. So except the Suguna, which we have already told, Urmila Nagar, Rajendra Gangani, Shobna Narayan. Shobna Narayan is also a popular dancer, and those people who have based in Delhi, very often you will see her performing almost for last 15 years. Every third day you will see her picture done, and she has very important book on Kathak called Rhythmic Echoes and Reflections. That's the name of the book. Somewhere I would have mentioned about that book. I don't remember where, but yes. So Shobna Narayan could be asked. Shobna Narayan is a leading exponent of Kathak, and she has done maximum experimentation of Kathak along with other dance form, whereas the ballet, tap, flamenco. In fact, I did a 30-minute film for the Ministry of External Affairs, where Shobna Narayan was one of the lead artists, and there were 3 other dancers. So Shobna Narayan is an important lady from Kathak dance forms in India. So we'll go to question number 11. So who among the following is not a Kathak dancer? Anjana Puri is not a Kathak dancer, and the rest of them. Saswati Sen is also popular. If you have seen the Shatranj Ke Khiladi, also not Shatranj Ke Khiladi, of course. So she choreographed in that particular film. Saswati Sen names you will see as a choreographer, because there's a dance sequence of the Kathak over there, and Saswati Sen choreographed that. Question number 12. Amar Das, Manikpuri ko chhod ke baki sab log jo hai Kathak dancer hai. Munna Shukla is also. Gitanjali Lal is also popular. Please mark it carefully. Gitanjali Lal as a popular Kathak dancer based in Delhi. Hanji. Question number 13. Prerna Shrimali, Sitara Devi. Ashwini Bhide Deshpande is not a Kathak dancer. Rest of them are all Kathak. Prerna Shrimali का नाम भी पॉपुलर है. पॉपुलर डांसर में आप मार्क कर सकते हैं उनको. क्वेश्चन नंबर 14. तुलसी दास को छोड़ के बाकी सब लोग जो है. Kumudni Lakia is popular, which I have already told probably. If not, then mark it. पूछा जा सकता है क्वेश्चन. She has done a lot of work in Kathak. एक बहुत मोटी किताब है कथक डांस के ऊपर. सुनील कोठारी का लिखा हुआ बुक है. तो उसमें जितने भी डांसर मेंशन किए हुए हैं, ये मैंने सब नाम वहां से इकट्ठे किए हैं. प्लस ऑल्सो एट द सेम टाइम ये पीछे का जो एसएनए वाला चक्कर है, बट उस किताब के अंदर that was published 25 years back. So if you bump into that book, it's fine. But right now I'm marking the big names which can be asked. So Kumudin Lekhia is one of them. Question number 15. Except the Niveli, rest of these people are all Kathak dancer, not very popular, but yes. Question number 16. Except Nayan Ghosh, all are popular Kathak dancer. Uma Dogra का भी नाम लिख सकते हैं आप popular लोगों में. तो almost जो है 10 एक popular dance जो है, मैंने इसमें करीब 20 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन हैं इसके अंदर. 10 important names I have mentioned over in this discussion. So mark it. As I said, that one classical dance form question can be asked. कथकली में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है ये,
they're all Malayalam dancers, most of them. So it's difficult to remember the names. But anyone who will be popular, I would mark and mention categorically. Hanji. Yakshgan jo hai, which of the following is a form of Kathakali dance in Kerala? तो बाकी का नहीं है, और यक्षगाना is one form. हाँ जी. Who among the following is a Kathakali dancer? So question number 2. So all of these names are Kathakali dancers. So all of the above is the correct answer. Generally none of the above आता है, but मैंने all of the above डाला हुआ है just so that you can remember these names. Except Shamchand Singh, rest of these people. Gopinath is a popular name. Who among the following is not a Kathakali dancer? So except Padma, Talwakar, all of these people are Kathakali dancers. Question number 5. Let me figure it out. If Lakshmidhar Raut को छोड़ के बाकी सब लोग कथकली डांसर है. Let me just figure it out. Some popular name. Question number 6. Oniam, except Oniam Singh, all are Kathakali dancers. Kalamandalam Gopi, mark it carefully. Kalamandalam Gopi is a popular name in the Kathakali dance. So except Anu Bhatt, Lakshmi, rest of them are all Kathakali except her. So Kalamandalam Gopi is the popular name. Very often you will see performing him all over the country. Question number 8. Question 7, yeah. Question number 8. Except Pratibha Das, most of these people are Kathakali dancers. Sometime when you are not able to figure it out, Nair, Pillai, most of these people are the surname in Kerala. So you can guess sometime. Question like this can be easily guessed. Anyone who's a Das would be maybe from West Bengal or Odisha. So very rarely you see these people performing. So generally surname has to be belongs to Kutti Nayar and all those kind of name. You will find people from Kerala. Question number 9. Vidyanand, except Vidyanand, rest of these people are all Kathakali. Kalamandalam, Padmanabhan Nayar is a popular name. Mark it carefully. Like Gopi is one of the popular name. Question number 10. Except T.N. Shankaran, rest of these people are all Kathakali dancers. Okay, let me also figure it out some other names if we can find. Question number 11. Except Pradeep Mule, all these people are Kathakali dancer. Question number 12. Except K.K. Ramchandran, all are Kathakali dancers. Let me figure it out, some popular name among them. Not really. So question number 13th. Nandkishore Acharya. Nandkishore Acharya is a well-known historian as well as critic. So that's how this name stand out very easily. Question number 14th. Manoj N. Joshi is an actor basically. Rest of these people are all Kathakali dancers. Kalamandalam Gopi again, I have mentioned here. So Shanta Gokhale is a theatre critic. So she is not a Kathakali dancer. Rest of them are all. Same is question number 17. Sarojini is not a Kathakali dancer. Rest of them. Basically 2 names I have mentioned who are much more popular than the rest of the people. So they will pick up, I suppose, I hope they will pick up someone who is popular rather than rest of the people who are awardees, SNA awardees, but not that popular. Kuchipudi ke andar kafi naam aapko milenge. That's why only 12 questions I have formulated who are much more popular name. Hanji. Question number 1.
Who among the following is not exponent of Kuchipudi dance? Kiran Sehgal is a popular name of Kuchipudi. Oh, sorry. Kiran Sehgal is not a Kuchipudi dancer. Swapan Sundari is the most popular one. Sonal Mansingh is also most popular. Satya Narayan Sharma is not that popular, but yes. So who is not an exponent of Kuchipudi? It is Kiran Sehgal. Hanji. We'll go to question number 2. Swapan Sundari could be asked because she is kind of a star. Sonal Mansingh also is a star, but Sonal Mansingh also does, as I said, 2 dance forms. She also does Bharatanatyam. So be careful. Hanji, question number 2. Not a popular names, but except Chinta Krishna Murthy, they all are Kuchipudi dancers, but not popular. Popular name I'll mark it. Hanji, question number 3. Who among the following is not a Kuchipudi dancer? Sandhya Purecha को छोड़कर बाकी सब लोग Kuchipudi dancer हैं, popular नहीं हैं, but still there. Question number 4. Parvati Baul को छोड़ के बाकी सब लोग जो है Kuchipudi dancer है. Parvati Baul, as the name says Baul, she is a Baul singer from West Bengal. Question number 5. नीला राम गोपाल को छोड़ के राजा राधा रेड्डी भी, जैसा हमने पहले बताया, is one of the star dancers. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6. अगेन जे वैद्यनाथन को छोड़ के बाकी सब लोग. Swapan Sundari, again we have marked it here. Question number 7. Again the same name, who is not a Kuchipudi dancer. Rest of these people are K. Umara Rama Rao. They all are not popular, but yes, people knows them. Popular name I'll mark it. Question number 8. Prabhakar Karekar is not a Kuchipudi dancer. Rest of them are, but not popular. Question number 9. Yamini Krishna Murthy, Vijay Lakshmi, all these people. Yamini Krishna Murthy इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि that she is known for Bharatanatyam rather than this form. ये मैं मार्क कर लेता हूँ, ये गलती से आ गया यहाँ पर. Who among the following is not a good Kuchipudi dancer? So question number 10. Arvind is not the Kuchipudi dancer. Rest of them are. Let me figure out some more popular name. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11. नीला राम गोपाल को छोड़ के बाकी सब लोग अवार्डीज हैं SNA. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है कोई ढंग एक्सेप्ट कला रामनाथ को छोड़ के बाकी सब लोग कुचिपुड़ी डांसर हैं. तो पॉपुलर बेसिकली 3-4 लोग हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्वपन सुंदरी और let me just quickly tell you the name after looking at it once go. Kiran Sehgal को छोड़ दो, she is not from the genre. So आप इसमें स्वपन सुंदरी रख लीजिए एक, फिर और कौन सा नाम जो है, Raja Radha Reddy is the one of the star name. And then these are the 2 names which are very popular. Rest of the people are performers, but not many people knows about them. But these are the 2 star names which I've just mentioned. Okay, so we'll move to another dance form. Miscellaneous dance 27. इसमें कुछ experimental ये सब जो है नाम मैंने इकट्ठे किए हुए हैं. Couple of years, 2 years back, I think last year or last to last year, Astad Devu passed away. He's one of the artists who is known for a fusion rather than these flamenco, ballet, etc., etc. So sometime you have to be more careful with the people like that. Hanji.
डांस से कनेक्टेड और भी कुछ छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। स्टेट का नाम पूछा जा सकता है, जैसे थांगटा जो है मणिपुर से बिलोंग करता है। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्म एंड विच स्टेट इट बिलोंग्स टू। सो मणिपुर इज द करेक्ट नेम। हाँ जी। कलरीपट्टू everybody knows belongs to Kerala. So these are very easy and very often you will see this kind of question, but easy इसलिए कि पता है तो easy है, नहीं पता तो फिर मुश्किल है। So which of the following is not a folk dance form of Bengal? So Saila is not a folk dance form. Rest of all these dance forms, this is a little tricky. If you don't remember, then it will be a problem. So Saila is not a dance form from Bengal. Rest of them are. Okay, question number 5. So question number 5 is, which of the following Indian classical dance form was used to portray romantic gesture between the religious and devotional purposes? Everybody knows that Kathak is one in which you see many of these dance drama performed are very often in Kathak. So that's a correct answer. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मुद्रा वाला जो है। Which of the following is, बहुत सारे लोग जो एक्टिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका डोमेन स्पेशलाइजेशन है, उनके लिए इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which of the following is not one of the 3 broad categories of dance expression penned down by Bharatiya नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र से कनेक्टेड कुछ ना कुछ वहां पर जरूर होता है। तो जिन लोगों ने ठीक से इसकी पढ़ाई की है उन लोगों को पता होगा, हस्त मुद्रा इज द वन विच इज द करेक्ट आंसर। Which of the following Indian classical dance is not based on story of Rama Sita and Rama Krishna? So ODC के अंदर जो है, that's the correct answer. Which of the following is the fisherman's dance in Maharashtra? बहुत simple answer है, कोली is very popular and everybody knows it. ये भी सब डांस फॉर्म है, लावनी, तमाशा, ये सब डांस फॉर्म्स हैं, बट कोली is the one which is the fisherman's dance form. स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस कम्युनिटी से कौन सा डांस फॉर्म बिलोंग करता है। So question number 9, which of the following is, option is false, not true but false. So false option is छाऊ। छाऊ का मिजोरम से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले बताया आपको। पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज 3 स्टेट्स हैं जहां पर जो है छाऊ डांस परफॉर्म किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। Which among the following is the most ancient scripture that mentions dancing in India? Rigveda. So Rigveda is the correct answer. नाट्य शास्त्र एंशियंट की बात हो रही है, नाट्य शास्त्र बाद में लिखा गया है, वेदा ज्यादा वैदिक पीरियड इसी से डिफाइन होता है, which is not in terms of numerical values, you don't know when it started, so we call it as a Vedic period. कभी कभी कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा, कभी कभी, हमेशा नहीं मिलता है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था एमएसक्यू के लिए, तो उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो वेदा से कनेक्टेड है, बट वो बाद में मैं कुछ बात करूंगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया द आर्ट ऑफ डांस कैन बी ट्रेस्ड बैक, प्रूव्ड मटेरियल फैक्ट फाउंडर लेटर, ये क्या बकवास करी है यहाँ पर, टू विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री? तो हिस्टोरिकल है ये शायद क्वेश्चन पहले आ चुका है एफटीआई के अंदर, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। ये पहले क्वेश्चन मेरे को जहां तक याद है आ चुका है। Who among the following is a creative and experimental dancer? Creative तो सभी होते हैं, but experimental is a different word. So question number 12, all of them are मृणालिनी साराभाई के बहुत सारे डांस फॉर्म है which are experimental. नरेंद्र शर्मा is well known experimental dancer. Uday Shankar and Prabhat Ganguly is also experimental dancer. So all of them, correct answer is D basically. Question number 13, who among the following is not a creative and experimental dancer? So except R Vedavalli, rest of them are
experimental dancer, not very popular, but people knows them. Question number 14th. Who among the following is not a creative and experimental dancer? Again, Ratnmala Prakash ke alawa Maya Rao is a very popular experimental dancer. Ram Gopal also, Chandralekha. Chandralekha, you must have seen and observed many performances. But Maya Rao is based in Delhi. She also does theatre basically, but also known as an experimental dancer. Question number 15th. Who among the following is not a creative and experimental dancer? तो ऐसा आदमी जो क्लासिकल है, केवल क्लासिकल डांस फॉर्म करता है, उसका नाम लिखना है. चंद्रलेखा भी हमने बात की है. शंभू भट्टाचार्य, सॉरी ये कहाँ पे आई एम मिस्टेकन. क्वेश्चन नंबर 15th इज अस्ताद देबू है, एक्सपेरिमेंटल डांसर है. मंजूरी चाकी सिरकार is experimental. Kala Ramnath is not an experimental. Sachin Shankar is also experimental. So Kala Ramnath is the answer. Who among the following is not a creative and experimental dancer? Except K. Uman Kutti. Rest of them are all we have just discussed. Who among the following is not a creative and experimental dancer? Question number 17. Arvind Parekh के अलावा सब लोग जो है, they all are experimental dancers. Not very popular, but yes. Popular नाम आएगा मैं बताऊंगा. Daksha Seth is a popular name. Remember it. It can be asked. Daksha Seth. Rest. Question number 18th. So except Neela Ram Gopal, rest are all experimental. Daksha Seth can be asked. Question number 19th. Navtej Singh Johar भी popular है. काफी performances आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा. Who among the following is not a creative? Sunil Kothari, as I told you, is basically a critic, dance critic. He's no more now. He is the one who wrote that book on Kathak. So Sunil Kothari is the name. Rest, Tanu Shankar, Maya Rao, they all are experimental dancer. Again, last question, question number 20th. Who among the following is not a contemporary dancer? Except the Arvind, they all are experimental dancer. Malika Sarabhai का भी नाम कुछ एक फॉर्म में experimental dance form में आता है. So question number 21. Tejan Bhai, everybody knows. Padam Shri, Padam Bhushan, Padam Vibhushan. इसमें मैंने बाकी का मार्क नहीं किया है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, so that you remember she received the Padam Vibhushan. The dance performed by women to evoke rain in Bihar is called. हाँ जी, चार ऑप्शन दी हुई है. Jata Jatin is the correct answer. Bihu is dance form of Assam. Name the dance of Himachal Pradesh performed indoor, solo, duet, especially when life comes to standstill during the cold winter. ये शायद मेरे ख्याल से आ चुका है. Munzra is the correct answer, if I'm not mistaken. One of these previous MCQs, if you check, this question has been asked. So I have included here also. There is a separate section which we have added previous year MCQ. ये 303 क्वेश्चन है. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो quickly they can run through. रिपीट भी करते हैं FTI के अंदर 10 to 20%. 20 अगर क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन कई बार वो लोग रिपीट कर देते हैं. Those people who have seen or gone through the previous one, otherwise also for the pattern sake, you should know what is being asked in the previously. हाँ जी, कर्नाटका का यक्षगान हर एक को पता है. Very simple question. Natya Tarangini is a school for which Indian dance form is being not. Kuchipudi is the correct answer for it. This is a little tricky question, but in some of the, I don't remember where, but it is being asked in some general knowledge question. So it is not that secret a question, but if you don't know, then it's difficult. Kuchipudi is the correct answer. So which of these dances are performed on the edge of brass plate? ये एक थोड़ा चक्कर है brass plate वाला. आपने कभी देखा होगा कहीं ना कहीं इधर उधर. कुचिपुड़ी के अंदर जो है जनरली ये इस्तेमाल होता है. तो करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी डांस फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 27. द पैशन ऑफ डांस वाज रिटन बाय यामिनी कृष्णमूर्ति का बुक है ये. 5-6 नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर. ए पैशन फॉर डांस पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. पैशन फॉर डांस. सो
काफी इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द फोक डांस फॉर्म, कोई स्टेट से कनेक्टेड है, जैसे बिहार वाला क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। हाँ जी, ये सब हो गया मिसलिनियस। मोहिनीअट्टम में भी 4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, इसमें आलतू फालतू नहीं होगा इसके अंदर। हाँ जी, सो who among the following is a Mohiniyattam dancer? All of these people are Kapila Vasan, did not perform so much, but everybody knows. K. Kalyani Kutti Amma is one of the most popular name when it comes to Mohiniyattam, and all these people are also Mohiniyattam dancers. Again, Bharti Shivaji is one of the star performer. अगर एक क्वेश्चन मोहिनीअट्टम पे अगर पूछा जाएगा तो भारती शिवाजी का पूछा जाएगा। इसमें जे वैद्यनाथन नहीं है, बाकी सब लोग डांसर हैं। ये भारती शिवाजी इज द मोस्ट पॉपुलर डांसर ऑफ मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म। मेरे ख्याल से अगर किसी का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का, वो मोहिनीअट्टम में भारती शिवाजी का ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following is not a Bharatanatyam dancer? मैसूर एम मंजुनाथन को छोड़ के बाकी सब लोग जो है पॉपुलर नहीं है, बट दे ऑल आर मोहिनीअट्टम डांसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, कनक रेले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो सब लोग, जो सो रहे हैं वो लोग जाग जाओ। कनक रेले पास्ट अवे मोस्ट रिसेंटली, इसलिए भारती शिवाजी के बाद कोई नाम अगर आएगा तो कनक रेले का आएगा। तो पद्मश्री नहीं है, पद्म विभूषण है इस लेडी के पास, तो इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट। कनक रेले, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट कुड बी आस्क्ड, और ये 1-2 दिन पुरानी बात नहीं है, ये कुछ 10 दिन हो गया, तो हो सकता है उस टाइम तक पेपर सेट ना हुआ हो। आई एज्यूम अगर पेपर नहीं बना होगा तो कनक रेले का नाम पूछा जा सकता है, बिकॉज शी हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन इन द मोहिनीअट्टम एंड शी इज नो मोर नाउ। So Kanak Rele and Bharti Shivaji, these are the 2 star names you need to remember. हाँ जी, ओडीसी में ज्यादा नहीं डाले हैं मैंने कुछ, बट एक जो सबसे बड़ा आदमी है ओडीसी का, वो केलुचरण महापात्रा is the most important name in Odissi dance form. Kiran Saigal is also important. Sanjukta Panigrahi is also important. पंडित लच्छू महाराज इज फ्रॉम कथक, सो ही इज नॉट एन ओडिसी डांसर। बाकी के तीनों नाम जो है इंपॉर्टेंट है। केलुचरण महापात्रा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना है जो कुमार शाहनी ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए फिल्म है, 1 घंटे का। पूछा जा सकता है ऑन विच ऑफ द एक्सपोनेंट कुमार शाहनी डायरेक्टेड ए फिल्म, ए केलुचरण महापात्रा, बिरजू महाराज, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आंसर वुड बी केलुचरण महापात्रा. This is the important question from the examination point of view, because Kumar Shani is ex-FTI and Keluchरण Mahapatra is the star of Odissi dance form. हाँ जी, ये मेजर जो है डांस वाला काम खत्म हो गया। इंटरनेशनल में बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं which will not asked, but that's why I am not touching upon it today. I'm picking up something else which can be asked for sure, which is called books on cinema. सिनेमा वाला सेक्शन कहाँ है? ये रहा, बुक्स ऑन सिनेमा, बुक्स नहीं, वो लिटरेचर के अंदर होना चाहिए। ये रहा, बुक्स ऑन सिनेमा पूछा जा सकता है। बुक्स ऑन सिनेमा पे 166 क्वेश्चंस हैं और कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा कवर करने की उसको। Meanwhile, there is a 6:48, so we'll break for 10-15 minutes, and 7 o'clock we'll be meeting again so that we can resume the discussion. Books on cinema will be talking from 7 o'clock till 8. So we can take a break for 10-12 minutes. Okay, guys. So we are going to discuss another important section which we already have mentioned to you. This is called books. There are 2-3 sections, so don't get confused. Films based on books, that is another section, and these are the books written on cinema. So it has also so many books I have included here. So whichever book I will mark very important from examination point of view, you please note down that specifically. Otherwise, many of the books are national awarded books by the author, so I have included each and everything. So sometimes a mad person makes a question paper, at least you should have access to that. So all these books are somewhere or other
I've included, but I will mark here specifically which are the one which are important. Give me 2 minutes time. Let me clear this. There's a lot of nonsense here. ये हटा लो भी वहां से, इसको ले जाओ, यहाँ पे भीड़ भड़का हो रहा है ना, इसको हटाओ. Okay, guys. So Father Gaston Robbage, who is no more now, he was based in Calcutta and he started a film society. Chandan or some name is there. There's a society, big complex is there in Calcutta. So Gaston Robbage is a very, very important person, and he wrote a book called Another Cinema for Another Society. Let me quickly show you the face of this guy, if he's here, if I can. Yeah, this is the name of the book, how it look like. This is he also came to FTI once. So Father Gaston Robbage, this could be asked. Again, Bombay Hustle, Making Movies in a Colonial City, not an important book, but written by Debashri Mukherjee. So I have just included here. Encyclopedia of Indian Cinema is an important book from examination point of view. Please mark it. There are a couple of names getting confused, Ashish Nandi, etc., etc. It is Ashish Rajyadeksha and Paul Willman. It's a big, thick book. So A is a correct answer. Again, the question number 4, Matmagi, Manipur, the first Manipur feature film, which received National Award in 2017, is by this guy called Bobby. So again, since it is a national awarded book, I have included here. Not that important a book from examination point of view. Who is the author of Lata Surgatha? Can be asked. Lata Surgatha can be asked because it's on A, it's on Lata Mangeshkar, and written by this gentleman called Jatindra Mishra. He is based in Lucknow and he writes on music, etc. Quickly, let me show you the cover so that you'll remember. This is the cover, and this is the guy. Where is he? Oh, no, Jatin's photograph is not there. So Jatindra Mishra is an important book. Lata Surgatha can be asked, and 2016 got a national award. So question number 6. Who is the author of the Silent Cinema in India, a pictorial history, which received national award in 2012? B.D. Garga is the name. Because it is written by B.D. Garga, and hence it is more important. So can be asked in the examination. Remember it. B.D. Garga is the name of the book. It's a photo, what you call, coffee table book. So who is the author of the book R.D. Burman, The Man Music? Not an important book, but Aniruddha Bhattacharya wrote this book. So I've included it here. From Rajhans to Yogis to Gandhi and beyond, images of India and international films of the 20th century. Why this book is important? Because Vijay Mule wrote this book. Vijay Mule is from theatre movement, film society movement, and Suhasini Mule's mother. There's an actress called Suhasini Mule, and she's the mother of her, but she herself has a big credibility of a person who's a kind of a founder in India about this film society movement. That's why I've included this book. Bollywood Melodies is not that important a book, but Ganesh Anantraman has written this book. Raj to Swaraj, non-fiction films in India. Again, since it is B.D. Garga, again, that's why this book is important from the examination point of view. 2. Question number 11. Who's the author of the book Helen, The Life and Times of which received National Award in 2006? Jerry Pinto is the author. Not very important book, but I will just include it. Question number 12. Who is the author of the book Kundan, which received National Award in 2005? Sharad Dutt का book है. Sharad Dutt का ये book पूछा जा सकता है because Sharad Dutt is no more and he recently passed away. ये किताब जो है इसलिए important है क्योंकि Sharad Dutt जो है he is no more. Sharad Dutt worked in the Doordarshan for many years, and I think month back or so he passed away. So probably it could be asked. Anyone who passes away could become important, and if I have included here, it means the book has some concern. So it could be asked because it is a current affair question in some sense of the term.
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टारडस्ट विग्नेटिंग फ्रॉम फलाना ढिमका, ये वो रूपा स्वामीनाथन का बुक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको भूल जाइए आप। ये सब मैंने इसलिए इंक्लूड भी किया हुआ है कि समटाइम सम पीपल आर थ्योरेटिकली इंटरेस्टेड, दे वांट टू फाइंड आउट व्हाट आर द बुक्स रिटन ऑन सिनेमा, सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिंग एज एन एंथोलॉजी आल्सो। Shoma Chatterjee is one of the most important film critics in this country. She has written more than 12 books. Please mark it. Shoma Chatterjee का कोई भी किताब पूछा जा सकता है. She is the most important film critics in this country. She is alive, based in Calcutta. Earlier she was based in Bombay. So Paroma and the other outsider, the cinema of Aparna Sen, which received National Award in 2002. Shoma Chatterjee की बुक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। Who is the author of the book गंगाधर, ये मराठी नेशनल अवार्ड है इसको, शैलजा पाटिल का बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नेशनल अवार्ड मिला हुआ है तो इसलिए इंक्लूड कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक, इंपॉर्टेंट किताब है अनुपमा चोपड़ा का। अनुपमा चोपड़ा गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर दिस बुक एंड शी इज द वाइफ ऑफ विनोद चोपड़ा आल्सो, सो दिस बुक कुड बी आस्क्ड, क्योंकि शोले एक पॉपुलर फिल्म रहा है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। Who is the author of the सिनेमाई भाषा और हिंदी संवाद के, ये अजीब सा नाम है कुछ जो आप पढ़ रहे हो, किशोर वासवानी का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी सिनेमा और दिल्ली, ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, सविता का बुक है ये, इसको भूल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ, अनिल जनकार की किताब है, अनिल जनकार वाज ए प्रोफेसर इन एफटीआई पुणे, सिनेमा की गोश्त, और ये जो है नेशनल अवार्ड है किताब को, और क्योंकि अनिल जनकार की बुक है ये तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है, नेशनल अवार्ड भी है, पूछा जा सकता है। अनिल जनकार वाज ए एक्स स्टूडेंट ऑफ एफटीआई एज वेल एज ही टॉट इन फॉर मेनी इयर्स इन एफटीआई इटसेल्फ। गायत्री चटर्जी इज आल्सो ए फिल्म क्रिटिक्स बेसिकली, बट उसने ये किताब नहीं लिखा है, ये उसने कुछ और लिखा हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई ऑफ द सर्पेंट व्हिच इज नेशनल अवार्ड 1996, एस थियोडोर का बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नेशनल अवार्ड है इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, संजीत नार्वेकर एक इंपॉर्टेंट फिल्म क्रिटिक्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है बुक, मराठी सिनेमा इन रेट्रोस्पेक्ट व्हिच रिसीव नेशनल अवार्ड। संजीत नार्वेकर का नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सिनेमा क्रिटिक्स के अंदर नाम आता है इस आदमी। आवारा के ऊपर जो है, हु रोट द बुक आवारा, गायत्री चटर्जी जो मैंने अभी बताया आपको नाम, शी इज बेस्ड इन पुणे एंड शी हैज आल्सो वर्कड विद सत्यजीत रे फॉर समथिंग certain number of 1 or 2 films I suppose. So Gayatri Chatterjee also teaches film appreciation, used to teach, I don't know whether she teaches still or not. So Gayatri Chatterjee का आवारा जो बुक है वो उसका पूछा हुआ है, 92 के अंदर नेशनल अवार्ड भी है उस किताब को लेके, पूछा जा सकता है आवारा वाला बुक because it is a Gayatri Chatterjee. Some people who are popular among FTI fraternity, they will be more important than the rest of the people. This is what my perception is. Okay, इसके बाद who is the author of the book हिंदी सिनेमा का इतिहास, ये इसलिए किताब इंपॉर्टेंट है कि मनमोहन चड्डा has written it and मनमोहन चड्डा taught in FTI for many years and very decent gentleman, graduate from FTI itself. So मनमोहन चड्डा की किताब है इसलिए पूछी जा सकती है। Question number 24, the moving images which received national award, किशोर वलीचा का बुक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल अवार्ड सुरेंद्र नाथ तिवारी का बुक है ये, और बट अगेन बिकॉज द नेशनल अवार्ड इट रिसीव। हाँ जी, हु इज द ऑथर ऑफ द गुरु दत्त 3 अंकी, ये अजीब सा नाम है कुछ, अरुण खोपकर का बुक है, मराठी बुक है ये। अरुण खोपकर इज एफटीआई ग्रेजुएट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ही हैज आल्सो डायरेक्टेड द डॉक्यूमेंट्रीज ऑन संचारी, लीला सैमसन को लेके जो फिल्म है, और 3 पेंटर्स को लेके एक और फिल्म है कलर ऑफ एब्सेंस करके, जिसमें भूपेन खक्कर, नलिनी मालिनी और एक और पेंटर है, उसको लेके फिल्म बनाया है। 3 डॉक्यूमेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए बनाई है उसने, अरुण खोपकर ने, इसलिए पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना एंड ताहिरा कश्यप का बुक है, पूछा जा सकता है ये, क्योंकि आयुष्मान खुराना इज अ पॉपुलर एक्टर नाउ, तो यू नेवर नो। बॉलीवुड बॉय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, जस्टिन हार्डी की किताब है, छोड़ सकते हैं आप इसे। अगेन राजू कर्माकर छूट गया, 28 छूट गया, सॉरी,
28 हमने बोल दिया। 29 जो है राधू कर्माकर की बुक है ये। राधू कर्माकर was the well-known cinematographer of most of the film of Raj Kapoor. He was a kind of a friend with the Raj Kapoor. जिस देश में गंगा बहती है वो डायरेक्ट भी किया था राधू कर्माकर ने। ये बुक जो है बहुत कम सिनेमाटोग्राफरों ने अपनी लाइफ पे किताबें लिखी हैं। दिस इज वन ऑफ द बुक। हाँ जी, रिटन बाय सलीम जावेद, द स्टोरी ऑफ हिंदी सिनेमा, ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर। बहुत इंपॉर्टेंट किताब नहीं है बट क्योंकि उसके ऊपर है तो मैंने इंक्लूड कर लिया है इसको। दीप्ता कृति चौधरी का किताब है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं उसको जरा मार्क करना ढंग से। क्वेश्चन नंबर 31, जाकिर हुसैन ए लाइफ इन म्यूजिक। नसीन मुनी कबीर का बुक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नसीन मुनी कबीर इज बेस्ड इन यूके एंड शी हैज रिटन सम इंटरव्यू बेस्ड काइंड ऑफ बुक्स। बड़ा आसान होता है इंटरव्यू लेना, क्वेश्चन पूछते रहो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द, बट it is also difficult if you really wanted to grab some really important questions from someone, so depend upon the person to person. Question number 32, The Peril of Being Moderately Famous. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है सोहेल अली खान का, पूछा जा सकता है बिकॉज शी इज अ करंट एक्ट्रेस। हाँ जी, द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉयज, अगेन द सेम गाय, यासिर उस्मान, नहीं उसका पहले कोई दूसरा आदमी था। यासिर उस्मान की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यश चोपड़ा के ऊपर ये किताब जो है 34 क्वेश्चन नंबर जो है इंपॉर्टेंट है। रेचल ड्रायर का बुक है ये, यश चोपड़ा 50 इयर्स इन इंडियन सिनेमा। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यश चोपड़ा इज यश चोपड़ा। सो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रियंका चोपड़ा द डार्क हॉर्स, अगेन बिकॉज शी इज ए करंट एक्ट्रेस। सो भारतीय प्रधान का बुक है, पूछा जा सकता है ये प्रियंका चोपड़ा वाली बुक को लेके। The dialogue, who is the author of the book Dialogue of Mother India? अब आप बोलोगे बुक का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि sometime as I said some people like नसीम मुनी कबीर की बुक है ये, तो she has included, I have included this book, not very important but it's fine. रजनीगंधा पटकथा, ये मन्नू मंडारी जी की किताब है जो उन्होंने बासु चटर्जी के ऊपर लिखा हुआ है। मन्नू मंडारी passed away 2 years back। कोई भी क्वेश्चन मन्नू मंडारी से कनेक्टेड पूछा जा सकता है, हालांकि लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ था बट उनका एक प्ले है महाभोज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मन्नू भंडारी का जो नॉवल है आपका बंटी इज अ वेरी पॉपुलर नॉवल। एंड एक किताब है उनकी एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन चैप्टर इज बीइंग रिटन बाय मन्नू भंडारी, अनदर चैप्टर इज रिटन बाय हर लेट हस्बैंड, बोथ आर नो मोर नाउ। तो बासु चटर्जी की कुछ फिल्में जो है मन्नू जी ने लिखी हैं और एक पटकथा के ऊपर एक किताब है इनकी। हाँ जी, पटकथा लेखन के ऊपर भी एक अलग से किताब है उन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 38, असगर वजाद की बुक है ये, पत्रकारिता लेखन के ऊपर जो है, इसको छोड़ सकते हैं आप, हिंदी का बुक है। बहुत सारे बुक का नाम ऐसा पूछा जाएगा जो साउथ के लोगों को भी पता हो, क्योंकि बहुत सारे हिंदी वाले नाम जो है साउथ के लोगों को नहीं पता होगा। बट आई हैव सीन दैट इन द पास्ट दे हैव आस्क्ड ए लिटरेरी फिगर फ्रॉम राजस्थान ए बुक अबाउट व्हाट ही हैज रिटन, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट पता नहीं है तो नहीं आएगा। बट अगेन असगर वजाद का अभी एक लेटेस्ट फिल्म आया है जिसको जो उसके नॉवल पे बेस्ड है, वो गांधी जी और उसको लेके नथुराम गोडसे को लेके जो फिल्म था, दैट इज रिटन बाय असगर वजाद्स प्ले, दैट्स बेस्ड ऑन असगर वजाद्स प्ले। द स्पिरिट ऑफ लगान, ये जो सत्यजीत बत्कल जो है इसका बुक है, इसने एक मेकिंग ऑफ भी इसके ऊपर बनाया है लगान के ऊपर जो है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड। लगान वाज ए पॉपुलर फिल्म एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। हाँ जी, द मेकिंग ऑफ ओम शांति इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, भूल जाइए इसको। मुस्ताक शेख का बुक है ये। ताजमहल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुरेश इस ताजमहल का एक और बुक है इसी का लिखा हुआ, या ताजमहल द मेकिंग ऑफ मोशन पिक्चर। ये मेकिंग ऑफ वाली जितनी बुक्स हैं, समटाइम इट इज इंटरेस्टिंग टू रीड एंड टू सी बिकॉज देयर आर सम गुड एनेक्डोट टू रिमेंबर। बट सुरेश कोहली का बुक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शोले दोबारा आ गई यहाँ पर, अगेन वी हैड डिस्कस्ड दिस बुक अर्लियर, द मेकिंग ऑफ क्लासिक, अनुपमा चोपड़ा का बुक है ये। मनोहर श्याम जोशी की किताब है पत्रकारिता लेखन, हिंदी में बड़ा अजीब सा लिखा हुआ एक परिचय। मनोहर श्याम जोशी की बुक है बिकॉज मनोहर श्याम जोशी इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी फ्रॉम द हिंदी लिटरेचर, सो दैट्स व्हाई हिंदी की केवल एक ही किताब है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पत्रकारिता, ये पटकथा लेखन एक परिचय।
मनोज श्याम जोशी की बुक है, बाकी की हिंदी की किताबें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्लूड कर लिया है मैंने, वो एक अलग बात है। प्रभुनाथ सिंह का ये बुक है, ये भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कपूर का जो बुक है द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्क करिए इसको आप। मधु जैन wrote for many years for India Today, that's why this book is important. The Kapoors, the first family of Indian cinema, मधु जैन की किताब है, पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ जी, इसके बाद आ जाइए, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू थिएटर्स लिमिटेड, द एम्बलम ऑफ आर्ट, पिक्चर ऑफ सक्सेस। ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, मधु का किताब है ये, मधु मुखर्जी का। लाइट ऑफ एशिया द साइलेंट फिल्म, इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करिए इसको। लाइट ऑफ एशिया, इंडियन साइलेंट फिल्म 1912 से 1934। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट book? Because it is written by Suresh Chhabria, who was a professor at FTI Pune for film appreciation. When we were student, he taught us, and he became the archive director of the National Film Archive of India, and that's why he has a very strong interest in cinema, and it's a kind of a monogram, 1912 to 1934। पूछा जा सकता है किताब जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से। एक और फेमस लिटरेचर के अंदर बुक है, बुद्धा के ऊपर लिखा हुआ, वहां से उसने टाइटल लिया है। I'm just giving a reference। बॉलीवुड इन पोस्टर, बहुत अच्छी किताब है, जो लोगों को पोस्टर में इंटरेस्ट है वो इस किताब को जरूर खरीदें, मैंने भी खरीदा हुआ है। SSM असूजा का बुक है ये, इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बुक बट वेरी इंटरेस्टिंग बुक। पोस्टर के ऊपर एक ही किताब मुझे आज तक समझ आई है इंडिया के अंदर, कोई और किताब अवेलेबल नहीं है। तो जब भी कभी आप कुछ पैसे खर्च करना चाहें तो इस किताब के ऊपर जरूर खर्च कीजिएगा। यू विल फाइंड लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पोस्टर, इज अ विजुअल बुक। The cinema of Satyajit Ray, कुछ भी सत्यजीत रे से कनेक्टेड इंपॉर्टेंट है। चिदानंद दास गुप्ता is the most important person in the history of Indian film critics, and he has written mostly extensively on Satyajit Ray। इसका जो बुक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे इज ऑल्सो पॉपुलर, कैन बी आस्क्ड। मैरी सीटन का भी एक बुक है सत्यजीत रे के ऊपर, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैरी सीटन की बुक का नाम कुछ और है और चिदानंद दास गुप्ता की बुक का नाम कुछ और है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50, स्पीकिंग ऑफ फिल्म इज अ बुक बाय रे हिमसेल्फ। सत्यजीत रे का खुद का किताब है, कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्टिकल। व्हेनेवर यू फाइंड टाइम यू मस्ट बाय दिस बुक, नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बुक। स्पीकिंग ऑफ फिल्म्स पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, श्याम बेनेगल के ऊपर संगीता दत्ता, संगीता है ये, संगीत नहीं है, संगीता दत्ता का बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मार्क कर लिया क्योंकि बेनेगल के ऊपर है, तो इसलिए बहुत सारी किताबें नहीं है श्याम बेनेगल पे, 3-4 बुक्स हैं कुल मिला के। 52, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक Seduced by the familiar narration and meaning or in Indian popular cinema? ये M.K. राघवेंद्र जो है कन्नड़ सिनेमा के अंदर जो है, he is based in Bangalore and he is also a FIPRISKI member and a theatre critics. Very difficult to understand his articles, but this is an important book. M.K. राघवेंद्र। हाँ जी, 53, क्वेश्चन नंबर 53, सत्यजीत रे इन सर्च ऑफ द मॉडर्निटी, सुरजन गांगुली का बुक है, क्योंकि रे के ऊपर किताब है इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 54, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यजीत रे, पाथर पंचाली और फिल्म जगत। ये हिंदी नाम का, हिंदी में बुक है महेंद्र मिश्रा का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इंक्लूड किया हुआ है मैंने। प्लेजर एंड द नेशन, द हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंजम्पशन ऑफ पब्लिक कल्चर इन इंडिया। जिन लोगों को थोड़ा लिटरेरी इंटरेस्ट है, थोड़ा सिमियोटिक्स और उन सब चीजों को लेके, तो दिस बुक इज इंपॉर्टेंट। रिचल राय का बुक है ये, बहुत लंबा चौड़ा नाम है तो इसलिए याद भी नहीं रहता लोगों को, बट इज इंपॉर्टेंट नेम। रिचल राय का बुक है। नैरेटिव्स ऑफ इंडियन सिनेमा, मंजू जैन की किताब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगेन इट्स इंटरेस्टिंग टू रीड। फ्रीडम एंड डेस्टिनी, जेंडर, फैमिली एंड पॉपुलर कल्चर इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 57। पैट्रिसिया ओबरॉय का बुक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, हु इज द ऑथर ऑफ द इमोशन पिक्चर सिनेमैटिक जर्नी इनटू द इंडियन सेट्स। नरेंद्र पंजवानी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डीप फोकस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक बिकॉज इट इज रिटन बाय, नो, एक वेट,
emotion pictures, cinematic journey into the India self. Correct. 58. That's Narendra Panjwani. Defocus is a book, collection of essays by Satyajit Ray. Again, रे का एक पहला किताब है, एक दूसरा ये वाला किताब है, Defocus, Reflection on Cinema. पूछा जा सकता है because it is written by Ray himself. Collection of articles basically. Question number 60. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कुछ मैंने और फिल्म्स बेस्ड ऑन सिनेमा पे भी एक सेक्शन मैंने तैयार किया हुआ है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर अप एज मच एज आई कैन कवर टुडे. ओके, हाँ जी, डीफोकस हो गया. ये बाइपोलर आइडेंटिटी, रिलीजन, नेशन, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन वाला किताब है इन कन्नड़ सिनेमा. एज आई सेड दैट इज एम.के. राघवेंद्र, सेम गाय व्हिच आई जस्ट मेंशन अबव. अगेन ए मेंबर ऑफ फिप्रिस्की. फिप्रिस्की के ऊपर शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए सब लोगों को. ये फ्रेंच एब्रिविएशन है, फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे आल्सो गिव द अवार्ड, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 61. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, मंजू जडेका का बुक है ये, बट डाल दिया है मैंने. इंपॉर्टेंट किताब होगी वो मैं मार्क करता जाऊंगा अभी. ऑथर ऑफ द बुक योर गुरुदत्त, इंटीमेट लेटर ऑफ ए ग्रेट इंडियन फिल्म मेकर्स. क्वेश्चन नंबर 62. नसरीन मुनी का कबीर का बुक है. पूछा जा सकता है क्योंकि ये गुरुदत्त से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा जो है पूछा जा सकता है. नसरीन मुनी का कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है. हाँ जी, भानु अथैया, ये गलत नाम लिख दिया है मैंने, भानु राजगोपाध्याय, ये गलत नाम लिखा हुआ है. भानु अथैया नाम है इसके अंदर. हिंदुस्तान में एक ही लेडी को ऑस्कर मिला है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए गांधी में, तो भानु अथैया इज द वन हु गॉट द ऑस्कर जॉइंटली अलोंग विद समवन एल्स. अकेले को नहीं मिला है भानु अथैया को. इज द लेडी who also written this book Art of Costume Design. Important question है, पूछा जा सकता है भानु अथैया के ऊपर. हाँ जी, आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन हो गया आपका. टॉकिंग फिल्म कन्वर्सेशन ऑफ हिंदी सिनेमा विद जावेद अख्तर, नसरीन मुनी कबीर का बुक है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन जावेद अख्तर के ऊपर. मोस्टली एज आई सेड हर बुक्स आर कन्वर्सेशंस एंड कन्वर्टेड इनटू द बुक्स. क्वेश्चन नंबर 65. शूट द पिकॉक, निक्कू रोप्सो का बुक है ये. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट डाल दिया है मैंने इसमें. उसका शूट का सीरीज है पूरा का पूरा, शूट द क्राउ करके. अगेन सेम गाय, निक्को. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बुक बट आई हैव इंक्लूडेड. क्वेश्चन नंबर 67. इंद्राणी भट्टाचार्य की बुक है ये हिमांशु रॉय के ऊपर, क्योंकि हिस्टोरिकल बुक है ये. हिमांशु रॉय के ऊपर बहुत सारी किताबें नहीं है, इसलिए बुक इंद्राणी भट्टाचार्य का इंपॉर्टेंट किताब है. कुछ थ्योरेटिशियन टाइप के लोग जो होते हैं उनको ऐसी किताबें बहुत अच्छी लगती हैं. सत्यजीत रे सिनेमा उल्लेखन, नहीं ये नहीं, ये कुछ अगेन नॉट श्योर. इट इज निक्कू रोप्सो बट लेट मी जस्ट फिगर इट आउट. आई डाउट लिटिल बिट बट आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ Shantaram? Shantaram, until unless you define, it is very difficult. If it is V. Shantaram, then Ranjan Bandyopadhyay का किताब है ये. Then who is the समय और सिनेमा, हिंदी का नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा. विनोद भारद्वाज की किताब है वैसे ये, बट पूछा नहीं जाएगा हिंदी के ऊपर. हिंदी में एक ही किताब इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, वो भी केवल इसलिए कि मनोज श्याम जोशी ने वो किताब लिखी है. बाकी ये सब जो है बुक्स मैंने डाल दी हैं किसी जमाने में. इसको मैं काफी इसको हटाऊंगा. इसमें जो इंपॉर्टेंट किताब है वो मैं मार्क करता जा रहा हूं यहाँ पर अभी. क्वेश्चन नंबर 71. इंडियन सिनेमा द फेसेस बिहाइंड द मास्क, अनिल सारी इज नो मोर. बहुत इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको. हु इज द बुक ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, 72 जो है डीपी मिश्रा का बुक है. बहुत इंपॉर्टेंट किताब नहीं है. गोविंद लेनानी, ए चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन, सौमिक बंदोपाध्याय का बुक है. सौमिक बंदोपाध्याय ऑल्सो राइट्स ऑन थिएटर एंड डांस एंड मनी मोर थिंग, तो हो सकता है कोई पूछ ले, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब नहीं है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, राइटिंग फ्रॉम बॉलीवुड ट्रेंचेस, 74 अनुपमा चोपड़ा का किताब है. ये वही लेडी है जिसने वो शोले वाली बुक लिखी है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए डाल दिया है. संजीत नार्वेकर का बुक है फिल्म डिवीजन एंड द इंडियन डॉक्यूमेंट्री. पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फिल्म डिवीजन एंड द इंडियन डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि फिल्म डिवीजन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और डॉक्यूमेंट्री से भी कनेक्टेड है बेसिकली. तो ये संजीत नार्वेकर का बुक है, पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 76. हु इज द ऑथर ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन इंडिया?
बहुत इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, केवी जोसेफ का बुक है ये, बट डाला हुआ है मैंने वैसे ही। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड इंडियन अवेकनिंग, ये अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। जगमोहन की बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 78, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिटीज ऑफ इंडिया मुंबई? पंकज राग जो है एफटीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। पंकज राग was also a director of FTII, please note it, and hence this book is important, Cities of India, Mumbai. Okay, हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। धुनों की यात्रा पंकज राग का ही बुक है, पूछा जा सकता है, बिकॉज ही इज ए एफटीआई डायरेक्टर, एक्स एफटीआई डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 80, हाँ जी, डिकंस्ट्रक्टिंग मदरहुड, इंडियन कल्चर, नैरेटिव एंड आइडियोलॉजी। मोनिका खन्ना का बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहीं से इधर उधर से दिख गई थी मुझे नेट पे, तो डाल दिया। हाँ जी, सिनेमा से संवाद 81 जो है, बुक नंबर 81 जो है, विष्णु खरे। ये किताब मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी है, क्योंकि आई एम वेरी फाउंड ऑफ विष्णु खरे, एंड इट्स वेरी वेल रिटन बुक। अगर हिंदी में कोई ढंग की किताब है ब्रजेश मदान के अलावा जिसको पढ़ने का दिल करता है, वो विष्णु खरे की सिनेमा से संवाद करके बुक है। जब भी अगर आप, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं खास तौर पे, वो इस किताब को खरीद सकते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो भी खरीद सकते हैं। इट इज रियली रियली वर्थ इट। इन डेप्थ राइटिंग ऑन सिनेमा अबाउट वेरियस फिल्म्स, इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। विष्णु खरे के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 82 में जाते हैं। स्नेह पत्रिकारिता, श्याम माथुर की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इज द बुक ऑफ बॉलीवुड टुडे, फालतू की बुक है ये, बट कावेरी बमजाई इज इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स, और इंडिया टुडे के लिए, सॉरी, इंडियन एक्सप्रेस के लिए बहुत काफी समय तक लिखती रही है, वहीं से कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल है बॉलीवुड टुडे जो है, बट अगेन वेरी कमर्शियल काइंड ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 84, विविधा रचना, विनोटो रॉय का बुक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। अग्र पत्रिका, पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सौमित्र चट्टोपाध्याय का नाम है शायद, ये कुछ बंगाली नाम है मेरे ख्याल से, दैट्स व्हाई आई एम नॉट श्योर, बट बुक जो है सौमित्र चट्टोपाध्याय की है ये। एक्टिंग इन सिनेमा इज ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल बाय अगेन सेम गाय, सौमित्र चट्टोपाध्याय, मोहन अगासे एंड कुमार शाहनी। ये शाहनी वर्ड है यहाँ पर, 3 लोगों का बुक है ये। बहुत अच्छी किताब नहीं है, बट कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल है। जो लोग एक्टिंग के लोग हैं वो लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं, एक्टिंग से रिलेटेड अलग अलग लोगों के आर्टिकल्स है इसके अंदर। बहुत अच्छी किताब नहीं है, आई हैव रेड दिस, किसी और कुछ सोच के मैंने मंगाया था, बट बहुत अच्छी किताब नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। हु इज द ऑथर ऑफ द 50 इंडियन फिल्म क्लासिक्स? पूछी जा सकती है ये किताब। क्वेश्चन नंबर 87, एम के राघवेंद्र की बुक है ये, जो अभी हमने 2 किताबें उस आदमी की और डिस्कस की है पहले, बट पूछा जा सकता है 50 इंडियन फिल्म क्लासिक। इस नाम से कोई और किताब, कोई 100 फिल्म क्लासिक्स, कोई ऐसे होती हैं बहुत इजीली, बट ये 50 इंडियन फिल्म क्लासिक्स के नाम से मुझे कोई दूसरी किताब अभी तक नहीं मिली है। एम के राघवेंद्र की बुक है, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 88, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 24 फ्रेम? वरला आनंद का बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 बॉलीवुड फिल्म्स भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि रेचल ड्रायर की बुक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यादों का सफर, हिंदी वाले जितने भी नाम है इनको भूल जाओ, हर्ष तिवारी की वैसे बुक है ये। मोस्टली इंग्लिश या पॉपुलर नाम या रे ऐसी किताब का नाम पूछा जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 91, अगेन हिंदी नाम है, याद है रेडियो सिलोन की, मनहर महाजन का बुक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वी शांताराम, लीगेसी ऑफ रॉयल लोटस, संजीत नार्वेकर का बुक है, पूछा जा सकता है, बिकॉज संजीत नार्वेकर इज इंपॉर्टेंट थिएटर क्रिटिक्स, और वी शांताराम के ऊपर है। वी शांताराम के ऊपर भी बहुत सारी किताबें नहीं लिखी गई हैं, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तम कुमार के ऊपर पूछा जा सकता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक उत्तम कुमार, द अल्टीमेट हीरो? तो ये निवृत्ति घोष का बुक है। हाँ जी, 94, उत्पल दत्त, जीवन और सृष्टि, अनूप मुखर्जी का बुक है ये, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उस्ताद विलायत खां, ए लाइफ सेट टू म्यूजिक,
म्यूजिक का बुक है, बट फिर भी मैंने इसमें डाल लिया है इसको। निहारिका सेठ की बुक है ये। हाँ जी, ओमपुरी के ऊपर बहुत सारी किताबें नहीं है। 96 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। अनलाइकली हीरो ओमपुरी, नंदिता सी पुरी का बुक है ये, जो उसकी वाइफ थी। पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ओमपुरी passed away couple of years back, and more important is he was a alumni of FTI। और ओमपुरी के ऊपर बहुत सारी किताबें नहीं है, एज आई सेड। कोई एक आधी किताब और हो गलती से तो हो, बट दिस इज ओनली बुक विच आई रिमेंबर। तो नंता सी पुरी का बुक है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 97, Who is the author of the book? उदय शंकर। उदय शंकर के ऊपर भी बहुत सारी किताबें नहीं है, अशोक कुमार मुखोपाध्याय की बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 98, टाइम पास द मेमोयर ऑफ प्रतिमा बेदी। प्रतिमा बेदी की बुक है, तो प्रतिमा बेदी ने ही लिखी होगी। Who is the author of the book? The name is रजनीकांत। गायत्री श्री कांत का बुक है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Which Indian film released in 2006 based on, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। हाँ जी, सांवरिया जो है, इसके ऊपर एक लुचिनो विस्कॉन्टी की भी व्हाइट नाइट के नाम से ही फिल्म है, जिसको सांवरिया के नाम से बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट फिल्म ऑफ दीज टू एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, जो दोस्तोवस्की के नॉवल पर बेस्ड है, शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है, सॉरी, व्हाइट नाइट के नाम से। हाँ जी, सुचित्रा सेन के ऊपर बहुत सारी किताबें नहीं है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कई बार, किसी आदमी के ऊपर ज्यादा किताबें नहीं है। शोमा चैटर्जी की बुक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये किताब। सुचित्रा सेन, ए लेजेंड इन हर लाइफ टाइम, शोमा चैटर्जी की बुक है, पूछी जा सकती है। कोई भी बुक शोमा चैटर्जी की पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। शिवाजी गणेशन पे रूपा स्वामीनाथन की बुक है ये। SRK स्टिल रीडिंग खान, क्वेश्चन नंबर 103, मुश्ताक शेख की बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेज प्ले द जर्नी ऑफ एन एक्टर, 104। अब किसी को अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा आइडिया जो है नहीं लगा सकते आप जब तक कि उसका नाम ना लिखा हो। सुषमा सेठ की बुक है ये। Who is the author of the book? शूटिंग वाटर, ए मदर डॉटर जर्नी एंड मेकिंग ऑफ फिल्म। तो ऑब्वियसली किसी मेकिंग ऑफ से है, सुषमा सेठ की बुक है ये भी। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, let me just check again, let me mark, just give me a moment। okay, question number 106, who's the author of the book? Shahrukh Khan, the life and times of Shahrukh Khan, again same guy, Mushtaq Sheikh, not an important book from examination point of view। शंभू मित्रा के ऊपर जो है बहुत सारी किताबें नहीं है, सौली मित्रा का बुक है ये, पूछा जा सकता है। शंभू मित्रा इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द इंडियन सिनेमा। सत्यदेव दुबे के ऊपर पूछा जा सकता है, क्योंकि पद्मश्री बहुत लोगों को मिलता है, पद्म भूषण बहुत कम लोगों को मिलता है। इज द ओनली वन ऑफ द थिएटर पर्सनैलिटी हु रिसीव द पद्म भूषण फॉर डूइंग थिएटर। सत्यदेव दुबे के प्लेस के अंदर नसीरुद्दीन शाह जैसे, ओमपुरी जैसे लोग हुआ करते थे व्हेन ही वाज अलाइव। ए 50-year जर्नी थ्रू द थिएटर। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शांता गोखले की किताब है। शांता गोखले इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिएटर क्रिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। अगर मैं एक क्वेश्चन थिएटर के ऊपर, थिएटर बुक के ऊपर पूछूंगा, तो सत्यदेव दुबे 50 years ऑफ जर्नी थ्रू थिएटर, शांता गोखले की बुक पे पूछूंगा। इट्स दैट इंपॉर्टेंट ए बुक। थोड़ी महंगी किताब है, बट इंपॉर्टेंट किताब है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 109, ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। जो इंपॉर्टेंट किताब है मैं उनके ऊपर बात करूंगा अभी। साहिल लुधियानवी मोनोग्राफ, भूल जाइए इसको आप। विल मार्क ओनली द बुक्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 111, ऋत्विक घटक के ऊपर, शोमा चटर्जी का बुक है ये, इंपॉर्टेंट किताब है। एज आई सेड, एनी बुक ऑफ शोमा चटर्जी इंपॉर्टेंट। और ऋत्विक घटक पे बहुत सारी किताबें नहीं है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ऋत्विक घटक के ऊपर पूछा जा सकता है, बिकॉज ही टॉट इन FTI आल्सो कपल ऑफ मंथ्स ओनली।
and Ritik Ghatak is one of the most important figure in a Bengali cinema. After Ray, people think Ritik Ghatak is the most important. Some people think before Ray, but I consider Ray as the greatest filmmaker from West Bengal. हाँ जी, 111, 112 रे के ऊपर भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जितने यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन मैंने बनाया हुआ है सत्यजीत रे का, अलग से सिनेमा वाले सेक्शन में। यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ वेरियस फिल्म्स बेस्ड ऑन हिज स्टोरीज। 70% बुक्स, 70% फिल्म सत्यजीत रे का किसी ना किसी स्टोरी या नॉवल पे बेस्ड है, पूछा जा सकता है। अभी हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ फिल्मों का। हाँ जी, रेशमी ख्वाबों का ये छोड़ दो आप, प्रहलाद अग्रवाल का है। आदि हकीकत आधा फस्ताना भी छोड़ दो, राजा परांज पे भी छोड़ दो। राज कपूर स्पीक्स 115 इंपॉर्टेंट बुक है ये, ऋतु नंदा का बुक है। राज कपूर स्पीक्स पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। राज कपूर द ग्रेट शोमैन दूसरा किताब है राज कपूर के ऊपर। ये पहले भी लता खूबचंदानी की बुक है, ये पूछी जा सकती है। राज कपूर से कनेक्टेड भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। पोर्ट्रेट ऑफ ए डायरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय मैरी सीटन। मैरी सीटन का रे के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी आदमी का, वो मैरी सीटन का है। एंड दिस इज ए बुक, पोर्ट्रेट ऑफ ए डायरेक्टर। जिसने कभी भी रे के ऊपर कुछ पढ़ना है, ढंग की किताब अगर कोई छपी है रे के ऊपर, तो मैरी सीटन की बुक है। और ये इसका पेपर एडिशन भी अवेलेबल है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, 300-400 रुपए की किताब है, यू कैन बाय इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑन द रे, पोर्ट्रेट ऑफ ए डायरेक्टर, सत्यजीत रे। जितने भी नाम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, अगर मैं उसमें से एक नाम जो पॉपुलर भी हो, थोड़ा आसानी से लोग आंसर दे भी दें, वो मैरी सीटन का है, ये वाला बुक। और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। रे के ऊपर सबसे ज्यादा किताब अगर कोई बिका है तो वो ये वाली किताब बिकी है। क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 ये सब छोड़ दो। निमाय घोष, अनदर इंपॉर्टेंट बुक, मोनोग्राम 119 जो है, सुनीपा बासु की किताब है ये। माय नेम इज गौहर जान। अगेन व्हाई आई हैव इंक्लूडेड हियर इन दिस वन, बिकॉज इसके ऊपर एक प्ले भी बन चुका है और विक्रम संपत की बुक है, क्योंकि थिएटर से भी कनेक्टेड है नाम जो है, इसलिए पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। मृणाल सेन के ऊपर भी पूछा जा सकता है, दीपांकर मुखोपाध्याय का बुक है ये, मृणाल सेन 60 इयर्स इन सर्च ऑफ सिनेमा। हाँ जी, मेरी आत्मकथा भूल जाइए इसको, मेमोरेबल असाइनमेंट ऑफ मूविंग इमेजेस, इसको भी थोड़ा भूल जाइए। मेगा स्टार चिरंजीवी छोड़ दो। मीना कुमारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, इसको भी बोल जाओ। मास्टर विनायक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, इसको भी छोड़ दो। ये सब मैं हटाऊंगा यहाँ से, बहुत सारी ऊट-पटांग की किताबें मैंने इकट्ठी की हुई यहाँ पे। बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया, इसको भी छोड़ दो आप, ये भी छोड़ दीजिए। एम के रामचंद्रन ज्वेल ऑफ द मासेस, ये छोड़ दीजिए, because there's a few days are left, so I'm just marking which is the most important. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 132, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 132 भी जेरी पिंटो की बुक है वैसे ये। हाँ जी, लता मंगेशकर के ऊपर पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस, नसीम मुनी कबीर का बुक है, ये पूछी जा सकती है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लता वॉइस ऑफ गोल्डन इरा और यहाँ पे लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस, दोनों में वॉइस की बात हो रही है और लता मंगेशकर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये मंदार वी बिच्छू का बुक है और वो नसीम मुनी कबीर का बुक है। नसीम मुनी कबीर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस गाय। हाँ जी, कवि शैलेंद्र को छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए आप। केएल सहगल को भी छोड़ दीजिए। एक मिनट। हाँ जी, इनक्रेडिबल जर्नी, आई डू इट माई वे, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ आमिर खान। हाँ जी, आमिर खान से रिलेटेड बुक है, तो पूछा जा सकता है इसके अंदर। क्रिस्टीना का बुक है ये, क्रिस्टिन डैनियल का। हाँ जी, 139 बहुत इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, इसको छोड़ दो। 140 हीरालाल सेन छोड़ दो। ये सब मैं यहाँ से ना भी इसको रिड्यूस करूंगा,
नेक्स्ट राउंड के अंदर, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इट इज नॉट जस्ट ए एंथोलॉजी, बट दिस site is being prepared from the examination point of view. I don't know why I have included all these books at that point. 141, हाँ जी, जेरी पिंटो की बुक है ये. हेलन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, दोबारा कैसे आ गई पता नहीं. गुरुदत्त, ए लाइफ इन सिनेमा, पूछा जा सकता है. नसीर मुनी कबीर का बुक है, पहले भी आ चुका है, इसको दोबारा से करेक्ट करना पड़ेगा. गुरुदत्त के ऊपर मोनोग्राफ को छोड़ दीजिए. गिरिजा शंकर, ठुमरी वाला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है ठुमरी के ऊपर, क्योंकि ये किताब जो है यतीन्द्र मिश्रा की किताब है और गिरजा देवी के ऊपर बहुत सारी बुक्स नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गिरजा जर्नी थ्रू ठुमरी, यतीन्द्र मिश्रा की बुक है, पूछी जा सकती है. हाँ जी, ये छोड़ दो. फ्लैशबैक वाला इटर्नल रोमांटिक माय फादर जेमिनी गणेशन को छोड़ दो. फियरलेस नाडिया पूछा जा सकता है. फियरलेस नाडिया इज बाय डॉर्थी वर्नर. डॉर्थी वर्नर जो जर्मनी के अंदर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है उसमें क्यूरेटर है ये, एंड शी क्यूरेट द एशियन सेक्शन एंड आल्सो सेलेक्ट सम फिल्म्स फ्रॉम इंडिया. सो फियरलेस इन नादिया के ऊपर जो है डॉर्थी वर्नर पूछा जा सकता है. 147 इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 148 को छोड़ दो, 149 को छोड़ दो. 150 दिलीप कुमार लास्ट एम्परर पूछा जा सकता है. दिलीप कुमार का लास्ट एम्परर जो है पूछी जा सकती है. तो ये जो है संजीत नार्वेकर का बुक है ये. अगेन क्वेश्चन नंबर आ जाइए 151. कोई भी बुक संजीत नार्वेकर से रिलेटेड पूछी जा सकती है. बहुत सारी किताबें नहीं लिखी हैं उसने, 3-4 किताबें लिखी हैं मुश्किल से. हाँ जी, देवानंद के ऊपर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ जी, दार्जिलिंग ट्रू लव, नरगिस दत्त का ये किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए. दादा साहब फाल्के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ये भी छोड़ दीजिए. बिस्मिल्लाह खान मास्टर, ये भी छोड़ दीजिए. विमल रॉय मोनोग्राफ, ये भी छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 156. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 156 इज भीष्म जोशी, भीमसेन जोशी. भीमसेन जोशी के ऊपर म्यूजिक से कनेक्टेड है, छोड़ दो इसको. ये वाला भी छोड़ दीजिए. 157. बेगम अख्तर के ऊपर 158 पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. Who's the author of the book Begum Akhtar, the Queen of Ghazal? सुतप्पा मुखर्जी का बुक है ये. आई एम नॉट श्योर, यतीन्द्र मिश्रा भी हो सकता है. लेट मी जस्ट चेक. नहीं, लेट मी फिगर इट आउट. इट में भी है बेगम अख्तर के ऊपर यतीन्द्र मिश्रा ने भी लिखा है, तो हो सकता है वो किताब हो ये, बट आई एम नॉट श्योर. लेट मी जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन. पूछा जा सकता है बेगम अख्तर के ऊपर. बिकॉज ही इज 159. मेघना गुलजार की बुक है, पूछी जा सकती है. बिकॉज गुलजार इज ए इंपॉर्टेंट पर्सन एंड नाम भी बड़ा अजीबोगरीब सा है, बिकॉज ही इज. तो मेघना गुलजार की बुक है, ये पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. 159 बिकॉज ही इज. हाँ जी, 160 छोड़ दीजिए आप. 161 पे आते हैं हम लोग जल्दी से. क्या टाइम हो गया? 148. ओके, 161. फितूर was an adaptation. हाँ जी, फितूर was an adaptation of a book written by चार्ल्स डिकन कॉल्ड. फितूर ये एक इंडियन फिल्म था. ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड है ये. पूछा जा सकता है क्योंकि ये एडेप्टेशन है और एक इंपॉर्टेंट नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकन का. हाँ जी, अडूर गोपालकृष्णन के ऊपर पूछा जा सकता है. क्यों? क्योंकि ही वाज द चेयरमैन ऑफ FTI पुणे एंड आल्सो दादा साहब फाल्के अवार्डी. सो गौतम भास्करन is also a film critics who wrote extensively in Hindu newspaper from South. गौतम भास्करन का बुक है, पूछा जा सकता है. अडूर गोपालकृष्णन के ऊपर बहुत सारी किताबें नहीं है, एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर. 163. प्रदीप चंद्रा इज अ फोटोग्राफर बेस्ड इन बॉम्बे, टाइम्स ऑफ इंडिया. AB द लेजेंड, ए फोटोग्राफर्स ट्रिब्यूट. पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदीप चंद्रा, क्योंकि बच्चन के ऊपर बुक है. बच्चन के ऊपर जितनी भी किताबें हैं ये फोटो कॉफी टेबल टाइप की बुक है. इज एन इंपॉर्टेंट बुक, पूछी जा सकती है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर. आमिर खान, एन एक्टर विद अ डिफरेंस. काफी लोगों ने किताबें लिखी हैं तो पता नहीं, बट ये लता खूब चंदानी की बुक है. AR रहमान 165. नसरीन मुनी का बुक है ये. अगेन द कन्वर्सेशन है, द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक. एनीथिंग व्हिच आई सेड conversation of Nasreen Muni Kabir can be asked from the examination point of view.
प्राण का बायोग्राफी है, बनी र्यूबन ने लिखा है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। बनी र्यूबन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. So this constitute some of the important question connected with that. More important is after this section, which quickly figure it out whatever I can. Films based on books. पहले पास में अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो लिटरेचर के अंदर ही होना चाहिए ये फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स. 36 है, तो जल्दी से हम लोग 10 मिनट में इसको खटाखट निपटा देंगे. पूछा जा सकता है इन 36 में से. We will quickly figure it out which is the important thing. मृगनयनी जो है वृंदावन लाल वर्मा के नॉवल के ऊपर बेस्ड है, और वृंदावन लाल वर्मा जिनको हिंदी लिटरेचर का कुछ अता पता है, इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. एक टीवी सीरियल इसके नाम पर बन चुका है. मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस सबों को पता है, ऐश्वर्या राय थी उस फिल्म के अंदर, और चित्रा बनर्जी का बुक है ये, तो इसलिए पता होना चाहिए. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसको नहीं मालूम वो नहीं कर पाएगा, और ये इंपॉर्टेंट फिल्म भी रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. हाँ जी, ओटीटी के ऊपर जो है वेब सीरीज आया था बिच्छू का खेल, इज बेस्ड ऑन ए हिंदी नॉवल ऑफ द सेम नॉवल. हु इज द नॉवलिस्ट? अमित खान का नॉवलिस्ट है. इंपॉर्टेंट बुक नहीं है बट फिर भी मैंने डाल दिया है. विराज बहू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी बिमल रॉय की जो फिल्में हैं दे बिकम इंपॉर्टेंट, एंड सिंस इट इज बेस्ड ऑन शरद चंद्र सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट. 1954 लिख दिया है जिससे कंफ्यूज ना हो लोगों को. शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नॉवल है ये, पूछा जा सकता है. दामुल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म एज वेल एज स्टोरी, बिकॉज प्रकाश झा became प्रकाश झा because of the Damul. I remember many years back when I was a small kid, this was premiered on the दूरदर्शन. और ये जो है शेवाल करके राइटर है, बहुत पॉपुलर राइटर नहीं है, ये नाम तुम्हें थोड़ा रटना पड़ेगा तोते की तरह. शेवाल की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. बाउंडेड अंटिल डेथ उसका इंग्लिश नाम है, दामुल उसका हिंदी नाम है, और प्रकाश झा ने फिल्म डायरेक्ट की थी. ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है. काल सूत्रा नाम की स्टोरी पर शेवाल की बेस्ड है ये, पूछा जा सकता है किसकी स्टोरी पर. अगर आपको शेवाल याद रहेगा तो आधा काम आपका हो गया. केतन मेहता की होली पूछी गई है पहले भी. महेश अलंकुंचवार थिएटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और उसका ये फिल्म केतन मेहता ने होली, जिसमें आमिर खान का एक छोटा सा रोल भी है. केतन मेहता ने एफटीआई के साथ मिलकर उस टाइम में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था, आर्टिस्ट इन कैंपस. तो केतन मेहता डायरेक्टेड दिस फिल्म इन विच अमोल गुप्ते प्लेड द लीड रोल, एंड बेस्ड ऑन महेश अलंकुंचवार. महेश अलंकुंचवार के ऊपर बेस्ड है. थिएटर में कोई भी क्वेश्चन महेश अलंकुंचवार से कनेक्टेड आ सकता है. हाँ जी, सीरियस मैन करके जो है मनु जोसेफ का नॉवल है, जिसके ऊपर जो है सुधीर मिश्रा ने एक वेब सीरीज डायरेक्ट की थी, पूछी जा सकती है ये पंजाबी नाम है, अन्ने गोड़े दा दान. ये इसलिए मैंने रखा है इसमें क्योंकि ये एफटीआई का लड़का है जिसने डायरेक्ट किया है फिल्म, जो है गुरविंदर सिंह जो है, और गुरदयाल सिंह के नॉवल पर बेस्ड है. गुरदयाल सिंह के नॉवल पर बेस्ड है. पूछा जा सकता है क्वेश्चन बिकॉज इज एफटीआई अलमुनाई. हाँ जी, नदिया के पार सबों को पता है, बड़ी फेमस फिल्म है, और हम आपके हैं कौन भी उसी बुक के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है कोबर की शर्त, और ये जो है केशव प्रसाद मिश्रा के नॉवल पर बेस्ड है. हाँ जी, हम आपके हैं कौन अगेन उस अलग अलग कर दिया है मैंने उसको, उसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कोबर की शर्त के ऊपर बेस्ड है. अब कुछ अजीब से क्वेश्चन भी होते हैं कई बार, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, बट ये उसी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है उस पहले वाले क्वेश्चन को. ये पटाखा करके भी एक फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज की, जो कि राजस्थान के एक चरण सिंह पाठक करके राइटर है, 2 बहनें के ऊपर बेस्ड था. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी स्टोरी थी. चरण सिंह पाठक की स्टोरी थी, 2 बहनें, और क्योंकि विशाल भारद्वाज की फिल्म है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. 7 खून माफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं एक क्वेश्चन इनमें से चूज करूंगा तो ये वाला चूज करूंगा. क्यों? क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट नॉट नॉवलिस्ट, बेसिकली शॉर्ट स्टोरी राइटर रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड की स्टोरी के ऊपर जो है सुजैना 7 हस्बैंड के ऊपर जो है बेस्ड है. वहां पर यहां से क्लू मिल जाएगा तुम्हें, सुजैना 7 हस्बैंड. वो ऐसे नहीं देंगे, वो सीधा पूछेंगे 7 खून माफ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय एबीसीडी.
तो वहां अगर नहीं पता तो फंस जाओगे। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। इसकी एक और स्टोरी है जिसको विशाल भारद्वाज ने बनाया है, उसका नाम है ब्लू अम्ब्रेला। कहीं लिखा होगा मैंने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, सीक्रेट गेम्स के ऊपर पूछा जा सकता है। विक्रम चंद्रा का नॉवल है। मुहाफिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि इस्माइल मर्चेंट फर्स्ट टाइम बिकेम डायरेक्टर। ही वाज अ प्रोड्यूसर विद मर्चेंट एवरी प्रोडक्शन। Ismail Merchant and James Avery was the people. James Avery would direct, Ismail would produce. अनीता देसाई का नॉवेल है मुहाफिज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म नहीं रही है क्योंकि 3 दिन के बाद सिनेमा हॉल से उतर गई थी, बट क्योंकि अनीता देसाई का नॉवेल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ये। और शशि कपूर प्लेड द लीड रोल इन दैट फिल्म, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रोल Shashi Kapoor has done. Nobody else could have done that role except Shashi Kapoor. And of course, Shashi was friend of Ismail also. But he played wonderfully. It looked very fat and like a poet. But this is an important question also from examination point of view. Indian film English August पूछा जा सकता है, पहले शायद पूछा भी गया है, उपमन्यु चटर्जी के नॉवल पर बेस्ड है। पूछा जा सकता है अगेन, दोबारा पूछा जा सकता है। ये हिरोशिमा मोन अमूर यहाँ पता नहीं क्यों आ गया है, क्योंकि ये जनरली इंटरनेशनल लोगों के लिए नहीं है। बट मार्गरेट दुरा का नॉवल है हिरोशिमा मोन अमूर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, डॉक्यू ड्रामा जो है, और मार्गरेट दुरा के नॉवल पर बेस्ड है। पूछा जा सकता है, इसलिए इसको डाल दिया मैंने यहाँ पर। हाँ जी, अनवर जो है एक फिल्म आई थी, मौला मेरे गाना है उसके अंदर, मनीष झा की फिल्म है। और पूछा जा सकता है शॉर्ट स्टोरी किसकी थी। तो शॉर्ट स्टोरी जो है प्रेमवद, एक राइटर है हिंदी के अंदर, प्रेमवद की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये। पूछा जा सकता है आपसे। ये बहुत पॉपुलर स्टोरी नहीं है, बट प्रेमवद का नाम हिंदी लिटरेचर के करंट जो राइटर्स हैं उसमें लिया जाता है, इसलिए ये किताब, ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है यहाँ पर। केतन मेहता की मिर्च मसाला बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और सॉरी फिल्म है ये। और बट ये राइटर मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना चुन्नी लाल माडिया के बारे में, और बिकॉज ये जो है वो गुजराती के अंदर स्टोरी थी, बट स्टोरी में कुछ और है। वो खेत जो है जिसके ऊपर जो चेंज किया था, वो पहले जो ये बीड़ी बनाने का जो पत्ता होता है उसके अंदर वो सेट है वो स्टोरी, बट द चेंजेस टू द मिर्च मसाला, सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मिर्च मसाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है केतन मेहता का। चुन्नीलाल माडिया नाम याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है, बट समटाइम पीपल सर्च सम स्टोरीज लाइक दैट। उमराव जान अदा एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, और मेरे ख्याल से जो मुजफ्फर अली की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्में हैं, वो एक मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान है, और मिर्जा हादी रुस्वा के नॉवल के ऊपर बेस्ड है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उमराव जान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, लुटेरे करके एक फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, जो ओ हेनरी की स्टोरी पर बेस्ड है, लास्ट लीफ। हाँ जी, हैदर सबों को पता है, हेमलेट के ऊपर बेस्ड है, शेक्सपियर के नॉवल के ऊपर। शतरंज के खिलाड़ी जो मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बेस्ड है, रिटन बाय सत्यजीत रे। पिंजर भी पूछा जा सकता है। पिंजर जो है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट की थी, और उर्मिला मातोंडकर was a lead character in that, मनोज वाजपेयी and these people। और ये अमृता प्रीतम के नॉवल पर बेस्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अमृता प्रीतम के नॉवल पे बेस्ड है, तो अमृता प्रीतम इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन पंजाबी लैंग्वेज। रस्किन बॉन्ड, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, रस्किन बॉन्ड का एक फ्लाइट ऑफ पिजन के नाम से जो है, जुनून उसका स्टोरी का नाम है, जुनून करके फिल्म थी जो कि डायरेक्ट की थी श्याम बेनेगल ने। पूछा जा सकता है क्योंकि ये रस्किन बॉन्ड का नॉवल है। फिल्म ब्लू अम्ब्रेला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसके ऊपर जो है एडेप्टेशन है, वो फिल्म रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, और बहुत पॉपुलर फिल्म नहीं है, आर्ट हाउस फिल्म है वो, डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी, ये द्वारा से साथ खून माफ क्यों आ गया, एडेप्टेड फ्रॉम ए सुजैना। ये दूसरे तरीके से पूछा गया है ये, बट वही क्वेश्चन है ये जो पहले अभी डिस्कस। मकबूल जो है इंपॉर्टेंट, वो है विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की है, उल्टे तरीके से ही पूछा जा सकता है, बेस्ड ऑन ए स्टोरी, विशाल भारद्वाज, बेस्ड ऑन व्हाट। हाँ जी, गाइड जो है बहुत पुरानी फिल्मों में से है, बट एक इंपॉर्टेंट आदमी का नॉवल था, R.K. नारायण का। गाइड के नाम से ही सब लोगों ने ये फिल्म का जरूर सुना होगा, वहीदा रहमान और देवानंद की फिल्म है।
पूछी जा सकती है, आर के नारायण का नॉवल है इसलिए। ओमकारा सबको मालूम है। हाँ जी। परिणीता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विद्या बालन की पहली इंपॉर्टेंट फिल्म थी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर बेस्ड है। टू स्टेट्स करके एक फिल्म आया था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, बट ये चेतन भगत की स्टोरी पर बेस्ड, बुक पर बेस्ड है, नॉवल के ऊपर। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू स्टेट्स। हाँ जी। 5 पॉइंट समवन हर एक को मालूम होगा, इज द मोस्ट पॉपुलर वन। 3 इडियट जो है फिल्म इसी के ऊपर बेस्ड थी। 34, क्वेश्चन नंबर 34, which film was inspired by the Chetan Bhagat's novel The Three Mistake of My Life? काई पूछे जो फिल्म है उसके ऊपर बेस्ड है वो। क्वेश्चन नंबर 35, which film was inspired by Chetan Bhagat's One Night at a Call Center? बहुत पॉपुलर फिल्म नहीं है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हेलो करके एक फिल्म आई थी जो डूब डाब गई, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो चेतन भगत के नॉवल पर बेस्ड है। द फिल्म साहिब बीबी और गुलाम, a very very important film in the history of Guru Dutt, is based on a novel by Vimal Mitra. This constitute 36 question. We are more or less done now. It's 8 o'clock. If somebody has a quick question, you can ask it. Okay, guys. So I'm wrapping it up now, and hopefully it was helpful to. Yeah, this is the last class. I'm thinking of doing some important questions class also, like 300, 350 questions for MCQ. And only for acting, I might be doing a 2-hour class on MSQ, not an MCQ, but MSQ, because it's really, really tricky and many people applies for that. Rest of the courses, I will not be doing it. Only for MCQ, some important 350 questions. I'll be announcing it tonight. So you could... any last minute guidance from your side? Okay. Very important thing is write the descriptive question paper in a point form. Point 1, point 2, point 3, point 4. Whatever question it is. That's a very, very important thing. Also, very neat and cleanly you have to write. They are not interested how big answer you write. They are interested how profound you are in your expression. So point form, writing an answer of the descriptive question in a point form is the clue to the game. That's it. So fine, guys. There are a few days left. Devote more and more time so that you could crack it. And that's it. Thank you very much.